अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप ऑडियंस? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग ग्रेट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। अच्छा बच्चों, इंग्लिश के नोट्स तो आपको हैंड ओवर कर दिए गए, सॉल्व नोट्स। उन्हीं नोट्स से को आपने लर्न भी करना है, विद स्पेलिंग्स लिखना भी है। लेकिन अभी उससे पहले हम जो है ये चैप्टर की रीडिंग करेंगे ताकि आपको चैप्टर का भी एक ओवरव्यू हो जाए। तो आपकी बुक का फर्स्ट जो चैप्टर है वो है जमील इज़ अशेम्ड। चलिए इसको रीड आउट करते हैं। ओपन पेज नंबर 6, फर्स्ट पैराग्राफ। Mr. Jamil had a red spotted handkerchief that he liked very much. It was a big one with deep red spots all over it. Mr. Jamil always wore it in his front coat pocket where it stuck out a little so that everyone might see it. Now, one morning, as Mr. Jamil was going along the road, he wanted to sneeze into, and it wasn't there. Mr. Jamil was so surprised that he forgot to sneeze, which was a pity, for he really liked a good sneeze. अच्छा, सिंपल सी बात है इसमें कि मिस्टर जमील के पास एक रेड स्पॉट्स वाला जो है वो रुमाल था जो उनको बहुत पसंद था, और वो हमेशा कोट में उसको ऐसे रखते थे जिस तरह से वो सबको नज़र आ सके। और एक दफ़ा वो जो है वो रोड पर वॉक कर रहे थे, उनको छींक आई तो उन्होंने जब रुमाल निकाला तो देखा रुमाल अपनी जगह पर नहीं था। Okay, paragraph number 2. He stood there feeling anxiously in his all pockets, but it wasn't in any of them. Somebody must have taken it, said Mr. Jamil. Yes, somebody at the meeting I've just been to. Oh, how naughty of them. I'll go straight back and see who got it. They will still be there talking. So back Mr. Jamil went and told everybody at the meeting that he had lost his red spotted handkerchief. You lent it to Haris to wipe some spots of his coat, said Naeem. But I gave it back, said Haris at once. And you also lent it to Hanif to wave his aunt when she passed by the window, said Naeem. इस पैराग्राफ में बताया गया कि वो हर पॉकेट में फील कर रहे थे रुमाल को, लेकिन उन्हें रुमाल नहीं मिल रहा था। फिर उन्हें याद आया कि वो भी अभी एक मीटिंग से आए हैं, तो उन्होंने कहा कि इसी मीटिंग में किसी बंदे ने जो है वो ये रुमाल निकाला होगा। अब जब वो वापस गए तो बारी बारी सबने कहना शुरू किया कि हारिस को दिया था आपने अपने कोट साफ़ करने के लिए। फिर किसी ने कहा कि हनीफ को दिया था आपने ताकि वो जो अपनी आंटी हैं उनको वेव कर सके, जैसे हाथ हिलाते हैं ना तो रुमाल वेव कर सके। ओके, कम टू पेज नंबर 7. But I gave it back. I know it. I did, said Hanif. He turned out his pocket and certainly there was no handkerchief there. ये देखिए इस पिक्चर में ना इन्होंने ये बनाया हुआ भी है। Turned out his pockets means उसने पॉकेट इस तरह बाहर की तरफ निकाली दिखाने के लिए कि उसकी पॉकेट में तो नहीं है। And I lent it to you, Naeem, to polish your silver watch chain this morning, said Mr. Jamil. उन्होंने नईम को भी दिया था अपनी वॉच को साफ़ करने के लिए। You must have kept it. Indeed I didn't, said Naeem. I put it back into your pocket myself. Did you lend it to anybody else? Yes, Jamil lent it to me to pop over my head when I went out in the sun to look for Javed, said Salim. अब देखिए कितने लोगों को उन्होंने दिया हुआ था यूज़ करने के लिए, वो देते थे। तो जब उन्होंने नईम से कहा, नईम ने कहा मैंने तो वापस आपकी पॉकेट में डाल दिया था, आपने किसी और को दिया था। तो फिर उन्होंने कहा हाँ जमील को भी दिया था। जब वो बाहर जा रहा था जावेद को देखने तो सूरज से छाँव के लिए मैंने उसको अपना रुमाल दिया था। I tied a knot in each corner, but I united them when I came back and gave the hanky back to Jamil. I know I did. It's no use looking at me like that, Jamil. I haven't got your handkerchief. Well, it's a very funny thing, said Jamil, feeling angry. I seem to have lent it to all of you this morning, and I haven't got it myself. So one of you must have kept it. It is very mean of you. Very well, Mr. Jamil. We will all turn out our pockets and show you that we haven't got it, said Hanif, and everyone turned out his pockets for Jamil to see. उन्हें गुस्सा भी आया। उन्होंने कहा कि तुम सबको इस्तेमाल करने के लिए मैंने दिया, लेकिन अब जब मुझे चाहिए तो वो मेरे पास नहीं है। सब ने कहा कि हम आपको अपनी पॉकेट्स यानी कि जेबें जो हैं वो चेक करा देते हैं। तो सब ने अपनी अपनी जेबें जो है मिस्टर जमील को चेक करा दी। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 ऑन पेज नंबर 7.
देयर वर सम रिसीट्स, विजिटिंग कार्ड्स, वॉलेट्स एंड मनी, बट नो रेड स्पॉटेड हैंकरचीफ. सबकी पॉकेट से ना बाकी सब चीज़ें निकल रही थी लेकिन रुमाल नहीं था. नाउ यू टर्न योर पॉकेट्स जमील, सेड हनीफ. विल मेक क्वाइट श्योर यू आर नॉट मेकिंग ऑल दिस फस फॉर नथिंग. सो मिस्टर जमील टर्न ऑन हिज पॉकेट्स बट देयर वॉज नो हैंकरचीफ देयर आइदर. यानी सब ने कहा कि हमारे से तो आप हमारी पॉकेट्स चेक करें, आप ऐसा करें आप अपनी पॉकेट्स भी चेक कराएं हमें. तो मिस्टर जमील ने क्या किया, उन्होंने अपनी पॉकेट्स भी जो है बाहर निकाल दी लेकिन उनमें भी रुमाल नहीं था. इट्स नॉट अ बिट ऑफ यूज़, सेड मिस्टर जमील. वन ऑफ यू हैज़ माई ब्यूटिफुल हैंकरचीफ एंड इट्स वेरी रॉन्ग ऑफ यू. नाउ मिस्टर जमील, when you left the meeting, I know I saw your red handkerchief sticking out of your front coat pocket, said Salim. I just know I did. So if you took it away yourself, we couldn't have kept it. Did you meet anyone on your way home? No, nobody, said Jamil. यानी अब सलीम ने कहा कि जब आप बाहर जा रहे थे तो मैंने वो हैंकरचीफ आपके पास ही देखा था, आपने रास्ते में तो किसी को नहीं दे दिया या रास्ते में जाते हुए किसी बंदे को तो नहीं दे दिया. उन्होंने कहा नहीं. Tell us exactly what you did, said Hanif. Well, said Jamil, I left the meeting and walked up the road. I saw a dog with a black head. Did you lend him your handkerchief? Asked Naeem. No, of course not, said Jamil. What would a dog want a handkerchief for? To wave the engine driver of the train or something? Don't be silly. यानी उन्होंने कहा कि फिर जब वो उन्होंने कहा कि मैंने तो किसी को नहीं दिया, तो सब ने कहा कि एग्जैक्टली आप बताएं कि हुआ क्या था. तो मिस्टर जमील ने कहा कि मैं बाहर गया तो मैंने एक कुत्ता देखा, तो एकदम से नहीं बोला कि क्या आपने उसको दे दिया अपना रुमाल. तो जमील साहब ने कहा कि उसको मैं अपना रुमाल क्यों दूंगा. फिर क्या हुआ? वेल गो ऑन, सेड हनीफ. And after a bit I saw a cow looking over a hedge, said Jamil. Did you lend her your handkerchief? Asked Salim. Really, Salim? Do you suppose I go about lending cows my handkerchief? Said Mr. Jamil. I suppose you think she wanted to polish her shoes with it. Well, she didn't. Go on. फिर उन्होंने कहा कि फिर मैंने एक जो है वो गाय देखी, तो सलीम ने एकदम से कहा तो आपने गाय को दे दिया. तो उन्होंने कहा कि मैं गाय को क्यों दूंगा अपना हैंकरचीफ. उसने कहा चलें आगे बताएं. What did you do next? Asked Hanif. Well, let me see, said Jamil. Oh, I know. A car came suddenly around the corner and I had to jump quickly into the hedge and fell over and hurt my knee very badly. Did you really? Poor old Jamil, said Hanif, for he knew how painful it was to fall down. Did your knee bleed? Oh, terribly, said Mr. Jamil. I had to bandage it. He suddenly stopped and went very red indeed. He didn't finish what he was going to say. तो फिर उन्होंने कहा गाय के बाद क्या हुआ. पहले तो उन्होंने कहा मैंने कुत्ता देखा, फिर उन्होंने कहा गाय आई, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि एक गाड़ी आई तो मुझे जल्दी तेज़ से गाड़ी आई थी तो मुझे जल्दी से साइड पे जंप करना पड़ा और मैं नीचे गिर गया और उससे मेरे घुटने पर लगी और मेरे घुटने से खून निकलना शुरू हो गया. तो मुझे उस पर बैंडेज करना पड़ी. तो एकदम से वो रुक गए और बिल्कुल रेड यानी सुर्ख हो गए. और आगे से उन्होंने भी फ़िलहाल कुछ नहीं बोला. ठीक है. गो ऑन, सेड नईम. ओह दैट्स ऑल, सेड मिस्टर जमील. Well, I don't think I'll bother any more about my handkerchief. Goodbye, everyone. No, Mr. Jamil, don't go yet, said Naeem, and he held him by the arm. Let's see your poor hurt knee. Oh, it's quite all right now, said Mr. Jamil. It might not be, said Naeem. उन्होंने कहा मिस्टर जमील अब जान बचा रहे थे ना. उन्होंने कहा अब ठीक हो गई है. नईम ने कहा नहीं हुई होगी. We would better look and see if it wants bathing. Turn up your trouser leg, Jamil. So Jamil had to, and his knee was neatly bound up with, what do you think? Yes, his red spotted handkerchief. I don't wonder you feel ashamed of yourself, said Naeem sternly. यानी जब उन्होंने उनका ट्राउज़र ऊपर करके देखा तो उन्होंने अपने घुटने पे क्या बांधा हुआ था, अपना रेड स्पॉट्स वाला हैंकरचीफ बांधा हुआ था. तो सबको ज़ाहिर बात है बहुत गुस्सा आया और नईम ने उनको कहा कि आपको शर्म नहीं आती, कमिंग बैक हेयर एंड मेकिंग ऑल दैट फस व्हेन इफ़ ओनली यू हैड thought for a moment you would have known quite well where your silly old handkerchief was all the time. I'm sorry, said Mr. Jamil, and he went home feeling very much ashamed. यानी सब ने कहा कि अगर इधर आने के बजाय और इधर यहाँ पर हंगामा करने के बजाय आप खुद थोड़ा सा सोच लेते तो आपको खुद ही याद आ जाता कि आपका हैंकरचीफ कहाँ
था। तो मिस्टर जमील ने कहा आई एम सॉरी, और फिर वो जो है वो उनको बहुत शर्मिंदगी हुई। ही डिडंट लाइक टू वेयर हिज हैंकरचीफ एनी मोर, सो नाउ इट इज़ नियरली फोल्डेड इन हिज ड्रॉर। सिली ओल्ड मिस्टर जमील, ही डिड मेक अ मिस्टेक डिडंट ही। तो आपके ख्याल में क्या मिस्टर जमील ने मिस्टेक की या नहीं की, उनकी गलती थी या नहीं थी, ये सोचना है आप लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा रीडिंग आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए, डिक्टेशन अच्छे तरीके से आनी चाहिए, और इसकी सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज जो हैं वो आपके पास हैं, उनको पढ़ें, उनको याद करें। उसमें फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे वीडियो के नीचे कमेंट करें, आपको वो भी एक्सप्लेन की जाएगी। चाहें तो फेसबुक पर वो आप इनबॉक्स कर सकते हैं पेज पर, वो आपको वहाँ पर भी हल कर दिया जाएगा मसला, नहीं तो स्कूल के एडमिन ऑफिस में भी आप रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।